Good evening, students. Just we are continuing today about our lecture number 5, the same topic, motion. Let me discuss what you have to learn in the topic motion. Uh, yes, you are given the points. We already discussed, but again we have to go in detail. Now here uniform motions, non-uniform, as well as acceleration. About uniform as well as non-uniform acceleration we have to discuss today, as well as concepts of slope and area. How to find the slope we already discussed, but again I am revising you how to find the slope as well as the area. For area we requires basically two figures. One is the rectangle, triangle or trapezium, and various graphs of the motions. Different graphs of the motions. Basically today's topic is based on the graph only. Okay, आज ज़्यादातर आपको ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करना है. Now here let me consider about that uniform as well as non-uniform acceleration. Acceleration non-uniform और uniform कैसा होता है? Okay, what is the uniform acceleration? What is the acceleration first? What is the acceleration? Anyone could knows? Acceleration is the rate of change of with respect to time. Acceleration is the ratio of velocity with respect to time. अब acceleration uniform है, इसका मतलब क्या है? Acceleration non uniform है, इसका मतलब क्या है? The ratio of the change in velocity and change in time is constant. If the ratio is constant, किसका ratio? Velocity by time का ratio is always supposed to constant. We can say the acceleration is a uniform. Okay, and the ratio is varying. रेशियो हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो क्या बोलेगा अपना? एक्सेलरेशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म, है ना. जब एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा? नॉन यूनिफॉर्म. इफ यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन दैट वेलोसिटी एंड टाइम, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी. ओके, इफ सपोज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट एवर द स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस, व्हाट एवर this type of graph. Which one? Velocity and time graph. Velocity and time graph. Now if the graph is a straight line, then what we are saying? The acceleration is the uniform. Acceleration क्या होगा वो condition में? Uniform. If the graph is non-linear, non-linear का linear का मतलब क्या? Straight line. Non-linear का मतलब क्या है? ग्राफ तुम्हारा straight line नहीं आता है, वो condition में क्या होगा? तुम्हारा acceleration is a non-uniform. These are the conditions for the uniform acceleration. अब इसमें क्या है? स्लोप. इसमें स्लोप क्या हो गया? स्लोप कुछ है क्या इसमें? नहीं है. इसमें स्लोप क्या हो गया आपका? स्लोप इज अ जीरो, है ना. फाइनल वेलोसिटी भी वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, डिवाइडेड बाय टाइम जीरो. दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ग्राफ ऊपर जा रहा है आपका. दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन नोन एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और ये टाइप का ऐसा ग्राफ नीचे आता है तो उसको क्या करके आप? नेगेटिव एक्सेलरेशन. समझ में आ गया? बाय द सेम वे सपोज the graph is non-linear. The same here the time graph, velocity, time graph, sorry, time axis, velocity, velocity and time. The graph is curved. Maybe this like this also, as well as some up and down like this also. We can say that this acceleration is a non-uniform acceleration. तो यहाँ पे क्या रेशियो की सेम है? नहीं है. रेशियो क्या है इसका? अलग है. यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट वी नो द वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. वेलोसिटी बढ़ रही है, पर कैसी? यूनिफॉर्म है क्या हो? नहीं है. कभी कभी यहाँ पे स्लोली बढ़ती, यहाँ पे सडनली बढ़ती गई, यहाँ पे स्लोली कम होती गई, है ना. यहाँ पे पहले कभी बड़ी, कभी स्ट्रेट है और कभी ज़्यादा भी. ये कंडीशन क्या बोलेगा अपन? नॉन यूनिफॉर्म acceleration. Is any doubt about that? Good. यहाँ पे देखो स्लोप्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप्स एंड एरिया. तो क्या है यहाँ पे देखिए, स्लोप इज डिफाइंड एज चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई इंटरप्रिटेशन. वाई यानी तुम्हारा वाई एक्सिस. ये क्या करता है जनरली? ये एक्स एक्सिस और ये क्या होता है तुम्हारा? वाई एक्सिस. ओके, व्हेन द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स इज यूनिटी, यानी उसका जो रेशियो जो है वो क्या है? तुम्हारा यूनिट है. उसे क्या कहते हैं अपन? स्लोप. यहाँ पे दिखाया देखो रास्ता, देखो ये रास्ता जा रहा है, ये क्या है तुम्हारा? ऊपर जा रहा है, बराबर है. और फिर से क्या जा रहा है? यहाँ पे नीचे,
ना। स्लोप का मतलब क्या है? द पाथ इज अनयूनिफॉर्म। पाथ क्या है तुम्हारा? उसमें अप या डाउन है। स्लोप का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको उतार, मराठी में बोलते उतार, बराबर है। स्लाइडर्स क्या होते हैं? स्लोप होते हैं, है ना। तो उसमें देखना है जब तुम्हारा आप स्ट्रेट लाइन आता है तो स्लोप कैसा निकालना है बताया मैंने आपको। स्लोप क्या निकाला कि सपोज इसके ग्राफ के कोऑर्डिनेट 0 है, 1 2 3 4, इस तरह से। इसके भी सपोज 1 2 3 4। तो क्या करना है स्लोप निकालने में? बाय पॉइंट फॉर्मूला, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ द एंगल आल्सो वी कैन फाइंड द स्लोप। पॉइंट फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडिंग बाय रेशियो ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या करना है आपको? वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। अभी ये तो ग्राफ तुम्हारा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन है। इज वेरी सिंपल। क्या करना है? कोई भी पॉइंट से यहाँ पे सीधा ऐसा वाई पे पॉइंट मार दो और फिर वहीं से एक्स पे मार दो। तो रेशियो क्या होगा तुम्हारा? y2 माइनस y1। तो y2 क्या है? सपोज यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 0 कितना आ गया? 3। फॉर्मूला क्या गया? y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2। x2 कौन सा है? यहाँ पर आया x2 बाय x1। तो क्या है? x2 डिवाइडेड बाय x1। ये क्या होगा? स्लोप। अदरवाइज और एक पॉइंट ले सकते हैं आप, ऐसे पॉइंट ले लिए यहाँ पर। तो इसे क्या कहोगे आप? y1 y2 x1 x2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इफ यू नो सपोज द एंगल, सपोज आपको एंगल पता होगा, सपोज एंगल क्या है? कोई भी एंगल हो सकता है x, एज वेल एज स्लोप वी कैन से इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, tan एंगल। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, है ना। इस तरह से भी अपन स्लोप निकाल सकते हैं। या तो आपको कोई लाइन दिया है, इसके पते बताया मैंने, लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे आप? इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, है ना, dy बाय dx ऑफ इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू mx। तो y इक्वल्स टू mx का आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको स्लोप मिलेगा। ओके, विल फाइंड अगेन हियर। यहाँ पे देखो ग्राफ दिया है, नेक्स्ट वाला, 2 लाइन्स आर गिवन। देखो इसमें ये ग्राफ की लाइन कैसी है? स्ट्रेट है। इसका मतलब ये ग्राफ कौन सा है तुम्हारा? यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसा है? ये इट इज नॉन लीनियर, सीधा है क्या है? नहीं। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा? नॉन यूनिफॉर्म। और एक बात, ये ग्राफ ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं? यूनिफॉर्म तो ये है कि स्ट्रेट लाइन भी है और क्या है? ऊपर बढ़ रहा है। इंक्लिनेशन क्या है उसका? ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव है ना। यहाँ पे भी देखिए पहले स्पीड कम थी, धीरे धीरे स्पीड क्या है और इसकी, बट ये भी क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव, बट इट इज नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? ये क्या है तुम्हारा? फर्स्ट वाला यूनिफॉर्म, सेकंड वाला नॉन यूनिफॉर्म। तो आज वही देखना है अपने को। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। देखिए स्लोप्स अंडर द एरिया ऑफ एस एंड टी। यस क्या होता है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या होता है तुम्हारा? टाइम। अब अलग अलग ग्राफ, ये टाइम टी, यस। तो स्लोप जो आप निकालते हो, किसका स्लोप निकालते हो? डिस्टेंस और टाइम का स्लोप निकालते हो। देन वी आर गेटिंग द वेलोसिटी। क्या मिलता है आपको? द रेशियोज ऑफ द एस बाय टी। और स्लोप निकाल रहे हैं आप, स्लोप किसका निकाल रहे हैं आप? एस और टी का, बराबर है ना। यस क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ पे 2 पॉइंट लो होना, तो यहाँ पे डालो y2 माइनस y1 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्लोप निकाले बाद में क्या मिल रहा है अपने को? वेलोसिटी। समझ में आ गया? हाँ। और जब एरिया निकालेगा अपन, एरिया कर्व का तुम्हारा आएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एरिया जब निकालते हैं इसका ग्राफ का, जो एरिया अंडर द कर्व, एरिया आ गया सपोज। एरिया क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ में एरिया क्या होता है तुम्हारा? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कितना पाथ कवर किया है उसने, वो कैसा निकालेगा आप? मैग्नीट्यूड, उसका नंबर। नंबर किससे आएगा आपको? एरिया से। एरिया में क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल रहा है आपको। कब? कौन से ग्राफ में? द ग्राफ इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग इक्वेशन है ना। अभी देखिए सेम, और अपन मोस्टली आपके लिए सिलेबस के लिए अपने को पढ़ना कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी आपको सिलेबस में नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग इन हायर क्लास देन डेफिनेटली वी विल लर्न अबाउट दैट नॉन यूनिफॉर्म एज वेल एज यूनिफॉर्म। अभी आपके लेवल के हिसाब से उन्होंने पहले इजी वे में दिया है,
यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ेंगे अपन, फिर बाद में फिर सिर्फ आपको पता होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने को, पर डीप में अपन उसके बारे में देख रहे नहीं, अपन देख रहे किसके बारे में ज़्यादा, यूनिफॉर्म मोशन। मोस्टली जो ग्राफ का है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। देखिए द नेक्स्ट वन, द ग्राफ अंडर द वीटी ग्राफ। वीटी का मतलब क्या है, ये एक्सिस पे क्या दिया है उन्होंने अपने को, वेलोसिटी, ये एक्सिस में क्या दिया अपने को, टाइम। अभी जब ये ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे आप, क्या निकालोगे, स्लोप में तो क्या मिलेगा आपको, वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी बाय टाइम क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। और सेकंड पॉइंट हो गया अपना, स्लोप निकल गया। अभी एरिया अंडर द ग्राफ वीटी, जब अपन ग्राफ का एरिया का कुछ एरिया निकाल रहे हैं, सपोज अभी ये लाइन है, तो लाइन का क्या करना है आपको, एरिया है, ये एरिया दिया है सपोज, है ना, ये एरिया है, एरिया से क्या मिल रहा है आपको। चलो और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझने के लिए और आसान हो जाएगा आपको। ये टाइम टी है और ये वेलोसिटी भी है। एक कोई गाड़ी जा रही है, सपोज इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, क्या ले रहा हूँ मैं इसकी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ले रहा हूँ, सिंपल आपको समझने के लिए, है ना। सपोज इसका क्या है 40 km पर आवर, पहले भी वही थी यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ भी 40 है 40 है 40 40 है। तो सपोज टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 3 आवर्स में गाड़ी कितनी कवर करे, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 120। तो कैसा निकाला आपने, तो क्या करा आपने 3 आवर्स और ये 40 बराबर है, तो क्या करे आपने उसका एरिया निकाला, बराबर है कि नहीं, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या मिला आपको, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सेम वे हियर आल्सो वी आर गेटिंग द डिस्टेंस ओनली व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस इन द ग्राफ, द एरिया अंडर द कर्व, वी आर गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। कब मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, इन एरिया, है ना। जब एरिया निकालते हो जब क्या मिल रहा है आपको ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। पहले ग्राफ में क्या मिल रहा था, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, कब, जब ग्राफ एस और टी का डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था। अभी क्या मिल रहा है अपने को, यहां पे वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो मिल रहा है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो ये क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ ए और टी, ए यानी एक्सेलरेशन और टी यानी टाइम। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, आपकी शायद स्टेट बोर्ड के बुक्स आपकी बुक्स में नहीं दिया होगा, लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या कहोगे इसे, क्या कहोगे इसे, इसको क्या कहोगे अपन, जर्क। क्या कहते हैं इसे, जर्क, है ना। आपको मिलता है क्या कभी जर्क, मेरा महसूस हुआ है कभी, सडनली स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, आपको झटका मिलता है ना, उसे क्या कहते हैं अपन, जर्क। सडनली स्पीड कम होती है तो क्या होता है, जर्क, है ना। तो एरिया, स्लोप ऑफ एरिया एंड टाइम ग्राफ इज नोन एज द जर्क। क्या कहेंगे उसे, झटका लगा क्या। कब होगा, जब उसका रेशियो ऑफ एरिया एंड टाइम का स्लोप क्या होगा तुम्हारा, जर्क। क्लियर, वेरी क्लियर, है ना। ये स्लोप क्या होगा तुम्हारा, जर्क। और जो एरिया आएगा इसका, तो एरिया क्या दिखाएगा तुम्हारा, एरिया दिखाएगा तुम्हारा वेलोसिटी। एरिया क्या दिखाएगा आपका, वेलोसिटी। समझ में आ गया। हाँ, जब ग्राफ का तुम्हारा एक्स एक्सिस पे एरिया है, सॉरी एक्सेलरेशन है, वाई एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, जब ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या होगा तुम्हारा, जर्क। क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द जर्क। जर्क का मतलब झटका, है ना। और इसका जो एरिया आएगा, एरिया क्या होगा तुम्हारा, वेलोसिटी। आइडिया क्लियर, समझ में आ रहा है, गुड। नेक्स्ट वन देखिए, तो यहां पे अलग अलग ग्राफ दिखाया आपको, वेरियस ग्राफ ऑफ मोशन। अलग अलग ग्राफ में मोशंस के देखने हैं, कौन से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जबकि तुम्हारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया अपन ने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया है ना, स्पीड टाइम ग्राफ देख लिया है। मोस्टली यहाँ पे अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपके क्लास के हिसाब से मोस्टली अपन दो ग्राफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कौन से ग्राफ पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज वेल एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अपन कम सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खाली इतना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द जर्क, इतना पता है खाली, है ना। पर अपन उसके बारे में देख रहे हैं, अपन क्या देख रहे हैं, सिर्फ मोस्टली कोई भी ग्राफ में जस्ट वी हैव टू कंसीडर ऑलवेज द टाइम बी ऑन द एक्स एक्सिस। टाइम क्या ले रहे हैं अपन, हमेशा कौन से भी ग्राफ में क्या लेते हैं अपन, एक्स एक्सिस।
क्योंकि टाइम क्या है तुम्हारा, टाइम इंटरवल ऑलवेज कांस्टेंट। टाइम इंटरवल किसके लिए रुकता है क्या? नहीं, टाइम इंटरवल क्या होता है तुम्हारा, सेम होता है। और यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे ग्राफ यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म होने के भी 3 तरीके बताए मैंने आपको। यहाँ पे सपोज डिस्टेंस तुम्हारा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक ही जगह पे है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव हुआ ही नहीं, जैसे थे वैसे, पर टाइम रुक रहा है क्या किसी के लिए? नहीं। तो वो कैसा होगा, तो वो ग्राफ कैसा होगा तुम्हारा, इस तरह से, ऑब्जेक्ट तुम्हारा जगह पे ही है, बराबर। अभी तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा साथ में मूव हो रहा है और टाइम भी साथ में मूव हो रहा है, तो और दोनों भी यूनिफॉर्मली मूव हो रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है, तो क्या होगा तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा तुम्हारा, ये आ गया एक्सिस। यहाँ पे क्या है तुम्हारा समय, डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं आप और आपको समय भी लग रहा है और यूनिफॉर्म है, तो ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया है ना, तो अभी डिस्टेंस अभी कम होगा क्या टाइम के हिसाब से, ये 2 ग्राफ आ गए। तो इसी तरह से अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, ग्राफ तुम्हारे नॉन लीनियर आएंगे, बस इतना ही याद रखना है आपको, समझ में आ गया। हाँ, ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस और टाइम, ये यूनिफॉर्म हो गया। और यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑब्जेक्ट जगह पे हला ही नहीं है आपका, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। हो सकता है कभी ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है, 0 पे है, या 10 पे गया, 10 के बाद में फिर सेम वहीं पे रुका है, फिर ग्राफ क्या होगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है। हाँ, हर ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप, जो ग्राफ आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आता है, तो स्लोप निकालने के बाद क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी। स्लोप निकालने के बाद में क्या मिलेगा, वेलोसिटी। बताया मैंने आपको कैसा निकालोगे आप, ये ग्राफ में वेलोसिटी निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो ग्राफ का इक्वेशन मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करके क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, बराबर है, मैंने बताया था। और तो क्या करना है, ये जो एंगल है, ये एंगल का क्या करना है आपको, tan ऑफ थीटा निकालना है ना। ये पॉइंट क्लियर है, ये इसमें वेलोसिटी तुम्हारी सेम नहीं आएगी, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट में अलग आएगी, बिकॉज ग्राफ इज अ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या है, नहीं, इसलिए हर एक ये पॉइंट पे कितना होगा, ये पॉइंट पे कितना होगा, ये पॉइंट पे कितना, उसके सबसे अलग आएगी। इसलिए इसको क्या करते हैं अपन, कर्व का इक्वेशन क्या है निकालते हैं, और इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद में अपनी वेलोसिटी मिलेगी आपको dy/dt। इस तरह से आपको मिलेगा ये ग्राफ की वेलोसिटी आएगा, वो भी आ गया आपको। द नेक्स्ट वन सेम सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सेम। अभी देखिए अपन ने ये वेलोसिटी टाइम है ना, टू कंसीडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी तुम्हारी वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है सपोज 40 किलोमीटर पर आवर जो भी है, तो उसमें कैसे आएगी तुम्हारी, ये ग्राफ कैसे आएगा समझो, बढ़ रही नहीं स्पीड तुम्हारी वही है, तो क्या होगा तुम्हारा ये ग्राफ किससे आएगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर। और देखिए वेलोसिटी क्या है, ग्रेजुअली बढ़ रही है आपकी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ग्राफ कैसा, कहाँ से बढ़ रही है वो मेंशन नहीं किया। चलो 0 से बढ़ती है, कहीं से बढ़ती है, चलो कहीं वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, ग्राफ क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव, ऊपर बढ़ते गए, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बढ़ने का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंटिन्यूस सेम मोशन में सेम टाइम में बढ़ रही है, उसका क्या है, वो क्या है एग्जाम्पल तुम्हारा एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में स्पीड क्या है 9.8 है, दूसरे सेकंड में 19.6, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है स्पीड, बढ़ रही है कि नहीं, वो क्या है तुम्हारा कंटिन्यूस स्पीड का है, उसकी बढ़ रही है, बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये क्या है, रेशियो ऑफ v एंड t इज ऑलवेज द एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपने ब्रेक लगाया बराबर है, तो ब्रेक लगाने के बाद स्पीड क्या होगी आपकी, कम भी हो सकती है ना, तो उसे क्या कहोगे आप, डी एक्सेलरेशन। ये क्या है तुम्हारा a इज पॉजिटिव, इसमें क्या है तुम्हारा क्या है पॉजिटिव, इसमें a क्या है तुम्हारा 0 और a क्या है इसमें निगेटिव। समझ में आ गया आपको। ये ग्राफ कौन सा तुम्हारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हर ग्राफ के जो अपन जो एरिया जो निकालोगे, एरिया में क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया में क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सेम उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ क्या है तुम्हारा, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको ऐसे भी फिगर्स आते हैं, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर स्टेज जा रही है, फिर उतर रही है, तो आपको पूछे कौन से ये पॉइंट्स में वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म कब बढ़ रहा है ग्राफ, व्हेन इट विल बी कांस्टेंट, एंड कब तुम्हारा ड्रॉप हो रहा है ना। इस तरह से ग्राफ होते हैं। और तो फिर कर्व आते हैं, कर्व भी क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी यहाँ पे स्लोली बढ़ती है और यहाँ पे सडनली बढ़ गया है ना, सॉरी। और इस तरह से वेलोसिटी आपकी
उतर भी सकते हैं, है ना। जो ब्रेक लगाए धीरे 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 गाड़ी की स्पीड उतरी और फिर बाद में एक जगह पे रुक गई है। तो वहाँ पे जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है उसे क्या कहोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये जो स्लोप आएगा ग्राफ का वो स्लोप क्या होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन का। सेम वे अबाउट द एक्सेलरेशन, ये एटी ग्राफ, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पर ए, यहाँ पर टी। एक्सेलरेशन देखो अभी तो एक्सेलरेशन के भी तीन है, कौन से, जीरो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एज वेल एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अभी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन तुम्हारा, ये जीरो एक्सिस है बराबर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ पे सॉरी, तो अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन 9.8 सपोज, है ना, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना 9.8, हर बार स्पीड तुम्हारी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पे क्या है एक पॉइंट है सपोज 9.8, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है तो कैसे आएगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन व्हेन द ग्राफ इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। अभी एक्सेलरेशन में जर्क हो रहा है तुम्हारा, झटका बैठ रहा है, तो जब तुम्हारा ग्राफ क्या है तुम्हारा ऊपर जाएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ का आएगा तुम्हारा नीचे आएगा इधर से। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है ग्राफ तुम्हारा, ये जीरो होता है, ऊपर क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव और नीचे क्या होता है तुम्हारा निगेटिव। नॉन यूनिफॉर्म का सेम वे, है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ इज अ नॉन लीनियर, ये क्या है ए और टी। यहाँ पे तुम्हारा क्या ग्राफ तुम्हारा नॉन लीनियर है, कर्व आ रहा है ना, या तो यहाँ पे जिस तरह से निगेटिव कर्व आ रहा है किस तरह से भी आ रहा है, तो वो ग्राफ क्या है तुम्हारा नॉन लीनियर, यानी तुम्हारा क्या है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया है। सेम पॉइंट्स बार बार वही बता रहे ताकि आपको याद हो जाए। अभी यहाँ पे जो कंपैरिजन है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको ग्राफ में कंपैरिजन दिया है। कोई ग्राफ में कैसा होता है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमेशा याद रखो, एक्स एक्सिस ऑलवेज वी आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम ओनली, ये क्या है तुम्हारा टाइम ही है ना। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका, 1 मीटर में डिस्टेंस 10 है, 2 घंटे में भी डिस्टेंस 10 है, 3 घंटे में डिस्टेंस 10 है। तो उसका मतलब वेलोसिटी कुछ है क्या उसकी, वेलोसिटी कब होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा ही नहीं है, हो रहा है क्या, तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी जीरो। तो वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा यहाँ तो एक्सिस होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, है ना, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे का होता है नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गया आपकी जीरो बराबर है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो वो कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा इस तरह से, समझे। अब यहाँ पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या मिल रहा है आपको वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या है वेलोसिटी। दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, वेलोसिटी कैसी है इसकी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकालना है, वेलोसिटी और टाइम निकालना है, तो ये क्या है कुछ तो भी है, 9.8 है सपोज, जो भी है कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है ना, 40 किलोमीटर पर आवर एग्जाम्पल होता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर ने क्या है तुम्हारे पॉइंट से तुम्हारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, कंपैरिजन बताया। अभी क्या है वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ पे क्या था तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब निगेटिव स्लो, अभी वेलोसिटी उतर रही है आपको, तो ग्राफ ऐसा है। तो ग्राफ वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम, तो निगेटिव एक्स में यहाँ पे जीरो और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा निगेटिव, उसका ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा इस तरह से, करेक्ट है। अब देखो पॉजिटिव वेलोसिटी और स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ रही है उसकी, स्पीड क्या हो रही है उसकी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी क्या हो तुम्हारा, पहले यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम पहले धीरे धीरे स्लो थी, फिर बाद में धीरे धीरे क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है इस तरह से। अभी वही इक्वेशन को तुम वेलोसिटी में क्या है स्पीड उसकी बढ़ रही है, कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है क्या नहीं है, तो क्या है तुम्हारी स्पीड उसकी पहले छोटी कम थी, बाद में क्या हो रही है इसकी स्पीड बढ़ रही है, समझे, स्पीड क्या है बढ़ रही है। सेम वे पॉजिटिव वेलोसिटी इज डाउन, तो क्या है तुम्हारा अभी नीचे आ रहा है, देखो ये ग्राफ को आप कैसे निकालोगे इस तरह से, कंपैरिजन दिखाया। नेगेटिव स्पीडिंग अप, तो अभी पहले स्पीड ज़्यादा थी, अभी धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है आपकी कम हो रही है, ब्रेक लगा रहे हैं आप, फिर उस वो ग्राफ कैसे दिखाओगे आप इस तरह से, समझ में आ रहा है कंपैरिजन। ये ग्राफ क्या है तुम्हारा ऊपर के ग्राफ क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और वही ग्राफ को क्या किया है नीचे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऐसा होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा आपका इस तरह से, समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, हाँ देख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ग्राफ तुम्हारा क्या है वेलोसिटी उसकी जीरो। वेलोसिटी ग्राफ यानी क्या करना है, सिंपली तुम्हारे को निकालना है स्लोप, ये पॉइंट का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है तुम्हारा जीरो है, तो यहाँ पे क्या ग्राफ क्या है तुम्हारा जीरो से है। यहाँ पे स्लोप क्या है इसका निकाल दिया अपन, समझो ये, तो क्या है स्लोप क्या है तुम्हारा
पॉजिटिव है तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव आएगा, है ना, tan ऑफ थीटा ये निकालते हैं, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या निकालते हैं अपन, इसको टेंजेंट निकालते हैं अपन, इसको स्लोप निकालते समय। वेलोसिटी स्पीड अप हो रही है तो ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये ग्राफ तुम्हारा ऊपर जाएगा। डी एक्सेलरेट हो रहा है, अभी वेलोसिटी क्या तुम्हारी ऊपर जा रही है ना, पर यूनिफॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में एकदम स्पीड बढ़ी, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, तुम्हारी स्पीड कम होती जा रही है। उसका ग्राफ कैसा तुम्हारा इस तरह से आएगा। यहाँ पे स्पीड कम हो रही है तो ग्राफ नीचे जाएगा, है ना, कम हो रही तो नीचे, यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रही तो ये ग्राफ भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया कंडीशंस, है ना। नेगेटिव एंड स्पीडिंग डाउन तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो स्पीड ग्राफ उसके इस तरह जाएगा। समझ में आया, कोई इसमें प्रॉब्लम डिफिकल्टी कोई ग्राफ में, वही कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी नेक्स्ट वाला, अभी आपको निकालना है क्वेश्चंस। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चंस में, 4 cars A, B, C and D are moving on at the level straight roads and there the distance time graph, ये distance दिया है आपको, time graph दिया है, are shown in the given figures. Which of the following is the correct statement regarding the motion of the car? तो आपको बोलते हैं देखो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस दिया है और ये क्या दिया आपको, टाइम। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है आपको। पहला क्या है, पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। कार ए इज फास्टर देन कार बी, करेक्ट है। तो क्या है इसमें एंगल क्या है तुम्हारा, जितना एंगल बड़ा उतना स्पीड क्या है, ज़्यादा है ना। कार ए की स्पीड क्या है, बी से ज़्यादा है, तो ये सही है। कार बी जो फास्टेस्ट है क्या, नहीं है, कार बी स्लोएस्ट है, सी फास्टेस्ट है, वो तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कार डी इज फास्टेस्ट देन सी, कार डी कहाँ पर है, ये सी से फास्ट है क्या डी, नहीं है, तो ये भी गलत दिया उन्होंने। तो कार सी इज द स्लोएस्ट, कार सी स्लोएस्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है आपका, करेक्ट है। गुड। द नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। अंडर द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, अपन देखिए वी और ए टी ए, represent the physical quantity which has the unit. एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताया मैंने तुम्हारे को, डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। एरिया क्या होता है उसका, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, मीटर। एरिया तो नहीं दिखाएगा, बराबर है। वेलोसिटी तो नहीं, वेलोसिटी ग्राफ में वेलोसिटी दिखाएगा, यूनिट किसका है, वेलोसिटी का है, वो भी नहीं होगा। मीटर के बने क्या होगा, वॉल्यूम, वो भी तो वॉल्यूम का अपन सोचे ही नहीं, ये भी नहीं है। स्क्वायर एरिया वो भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया उसका, सिर्फ ओनली मीटर। डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वन, यहां पे दो क्वेश्चंस, इसका आंसर दो अभी। द ग्राफ गिवन द अलॉन्ग साइड शोज हाउ द स्पीड्स ऑफ द कार चेंजेस विथ द टाइम। देखो अभी स्पीड चेंज हो रही है, आपकी टाइम दिया है, ये क्या है, स्पीड दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड 10 है, 10 से लेके बी तक, वो तो यहाँ पे 3 मिनट तक, मिनट या सेकंड दिया है, आवर्स दिया है, सॉरी 3 आवर्स दिया है। तो यहाँ पे 1 घंटे से 0 से लेके 3 घंटे तक स्पीड क्या है, उसी बढ़ रही है और कैसे यूनिफॉर्म। फिर यहाँ पे गाड़ी तुम्हारी रुक गई है, स्ट्रेट जा रही है, बराबर है। और फिर यहाँ पे फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कम हो रही है, बट सेम कॉन्स्टेंट कम हो रही है क्या, नहीं, थोड़ा कर्व दिया, बराबर है। अभी क्वेश्चन क्या दिया पूछेंगे, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, इनिशियल सबसे पहली स्पीड क्या है, वेरी गुड। कार आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो स्पीड क्या हो गई तुम्हारी कार की 10, अभी क्या है तुम्हारा 1 किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर, तो क्या स्पीड क्या हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अटेंड बाय द कार, मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक गई कार की आपके, वेरी गुड। 35 सिर्फ आंसर नहीं बोलना है आपको, 35 विद यूनिट, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 मार्क्स 0 मिलेंगे आपको, है ना। तो क्या बोला है, 35 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, विच पार्ट्स ऑफ द ग्राफ शो द जीरो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, स्पीड क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है, वेरी गुड। तो बीसी क्या शोज द पार्ट, बीसी ये क्या है तुम्हारा जीरो एक्सेलरेशन का पार्ट है, बराबर है। ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का पार्ट, ये क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, ये क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन 0। और यहां पे नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, वेरी गुड, यहां पे क्या है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। पूछा है कि नहीं, देखेंगे अपन। विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब कौन सा है तुम्हारा, जो सी और डी, सी और डी में क्या हो रही है, स्पीड कार की कम हो रही है। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्स इन द फर्स्ट 8 आवर्स, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को,
एरिया निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो कितने घंटे में निकालना है एरिया? 8 आवर्स। तो यहाँ तक निकालना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ का जो एरिया है कहाँ से? यहाँ से। तो ये एरिया आप जब निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आंसर्स। तो देखो, तो इसका क्या है, एरिया कैसे निकालोगे आप? तो पहले ये एक ट्रेपीजियम दिया आपको, है ना, तो ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालो। क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है तुम्हारा? 35 है ना, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। कितना है पैरेलल साइड्स? 35 + 10, करेक्ट है। 35 + 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3+। अब ये एरिया ऑफ ये फिगर, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, बराबर है। 8 आवर्स तक निकाला है ना। तो 8 में से 3 गए, कितने हो गए? 5। तो ये होगा तुम्हारा 5 और ये होगा 35। तो 5 इंटू 35 जो भी आएगा वो क्या होगा तुम्हारा? डिस्टेंस होगा। तो कितना हो गया? 1/2। एडिशन कितना है उसकी? 45 इंटू 3 निकाल दिया क्या? वेरी गुड। प्लस 5 5 25 to 5 कैरी 2 15 + 2 17। तो यहाँ पे भी कर दिया क्या आपने? पॉइंट में आ रहा है। 5 सीधा 15 to 5 कैरी 1 12 + 1 13/2 प्लस 175 डिवाइड करूंगे इसे। 2 6 12 एंड 2 7 14.5 प्लस 175। तो एडिशन कितना आएगा इसका? 175 प्लस 67.5। तो 5 7 + 5 12 2 कैरी 1 14 to 4 कैरी 1 एंड 2 242.5 किलोमीटर। एरिया की इसमें डिस्टेंस कितना आएगा आपका? यूनिट क्या दिया है इसका आपका? ये कितना आएगा तुम्हारा? किलोमीटर। 8 घंटे में आपकी गाड़ी इतने डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आ गया है? इज इट डिफिकल्ट इन दैट? कोई डिफिकल्टी है क्या? गुड। देन नाउ नेक्स्ट वन, ग्राफ। तो इसमें क्या बता रहा है? हाँ, कौन सा? बैक, कौन सा बोलिए? ये। क्यों? वो पूछा क्या उसने? क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? 8 आवर्स, है ना। तो 8 आवर्स कहां तक है? यहीं तक है आपके। हाँ पूछा, 10 पूछा गया उसने? नहीं पूछा, तो वो नहीं लेना है। आप पूछा तो कर्व है, वो आपका अभी इंटीग्रेशन में आएगा, आपको अभी नहीं आएगा आपको निकालने, क्योंकि क्या है बता आपके लिए लेवल के हिसाब से फिलहाल वो यूनिफॉर्म में जा रहे हैं। अब ये कर्व ट्रायंगल है क्या? हो नहीं, ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो इजीली। वो क्या है? कर्व लाइन दिया है, तो कर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से आप फिर बाद में वो निकाल सकोगे, है ना। अभी आपको नहीं आएंगे वैसे क्वेश्चन। समझ में आ गई है? नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। अभी देखो, करेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना, यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बताना है आपको। यूनिफॉर्म मोशंस कौन सा है इसमें बोलिए? ए। ये है क्या? क्यों नहीं है बोलिए? हाँ वेरी गुड। ये ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? रेस पे जा रहा ही नहीं, कहीं भी नहीं जा रहा। यूनिफॉर्म की खाली 2 ही कंडीशन है, कौन से याद रखना है आपको? ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये क्या है तुम्हारा? सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? रेस्ट पे है, मूव हो रहा ही नहीं। तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा? वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिए, ये अब यहाँ पे क्या बता? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इन स्टील एयर्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। बॉल फेंक रहे हैं आप ऊपर, ऊपर की वेलोसिटी क्या है उसकी? 20 मीटर पर सेकंड। इट्स कम है क्या? कौन कम से? स्पेलिंग गलत हो गया वहां शायद, है ना। स्पेलिंग क्या है उसका? समझ लेने का, है ना। इट कम्स बैक टू द ग्राउंड, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो क्या है? आपने फेंका है ऊपर, तो ऊपर रहेगा क्या? वो नहीं, फिर बाद में क्या हो गया? वो नीचे आएगा, बराबर है। जब आपने फेंका है, जब आपकी स्पीड क्या थी? 20, तो स्पीड वही रहेगी क्या आपकी? स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम। अरे भाई वो बाद में सोचो ना। देखो आप जब फेंक रहे 20 से, तो स्पीड क्या होगी? धीरे धीरे कम, 0 हो गई। 0 के बाद में स्पीड नीचे आ रही, यानी स्पीड निगेटिव हो रही, है ना। तो स्पीड कम हो रही है। देखो, तो अभी ये ग्राफ में क्या बताया आपको? ये अभी दिमाग में लगाना है हमेशा कि ये क्या है तुम्हारा? टाइम है, ये टाइम है। अरे यार इसमें 2 सेम दिया है, चलो कोई बात नहीं, दोनों भी आंसर है। इसका मतलब देखिए 2 आंसर है इसके। पहले क्या थी? इसकी स्पीड क्या थी? 20 थी, बराबर है। यहां पे था आपका ऑब्जेक्ट, धीरे धीरे स्पीड क्या हो गई? उस कम होती गई।
20 के बाद में 19 होती गई, 80 होती गई, 10 होती गई, 5 होती गई, बाद में क्या हो गया, स्पीड 0 हो गई, बराबर। फिर क्या हो गया, नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या गई उसकी, निगेटिव हो गई, बराबर है कि नहीं। फिर निगेटिव कहां तक जाएगा, निगेटिव 20 तक जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव 20 तक जाना चाहिए, बराबर है। तो इस तरह से आ जाना चाहिए। तो अब इसमें भी वही दिया है उन्होंने, तो शायद 2 आंसर्स दिया इसके उन्होंने, ये भी ग्राफ वही है, ये भी ग्राफ सही है ना, कोई डिफरेंस है दोनों में नहीं है। इसका मतलब ये भी आंसर है ये। अब ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं है, क्या देखना है आप लोग, क्या दिया उसने, वेलोसिटी और टाइम दिया, बराबर है। वेलोसिटी यहां से आपकी यहां पे 0 आई, फिर वेलोसिटी बढ़ी क्या आपकी, नहीं, वेलोसिटी निगेटिव में गई, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहां पे वेलोसिटी पहले 0 थी, वेलोसिटी बढ़ते गई क्या, नहीं, वेलोसिटी कमी होती गई, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग है। तो इसके मतलब आंसर इसकी क्या है, 2 आंसर इसके बी और सी। ग्रेविटी की निकालने के लिए आपको टाइम दिया है, क्योंकि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है तुम्हारा, क्या निकलेगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा 10, तो रेशियो कितना है उसका 20/2 कितना है 10, 20/2 10। तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो कितना हो गया तुम्हारा, एक्सेलरेशन कितना है 10, इसलिए एक्सेलरेशन दिया है उसका 10 है ना। यहां पे भी एक्सेलरेशन कितना है, डिफरेंस कितना है उसका 10 ही है, वेलोसिटी बाय टाइम 2 10, तो इसका 2 भी आंसर इसके आएगी। तो नेक्स्ट देखिए यहां पर a part is moving along the straight line, its velocity time graph is shown by in adjacent figures, the match of the following। तो velocity ग्राफ के बारे में बताया आपको, तो आपको क्या करना है, मैच द कॉलम, फिजिकल क्वांटिटी दिया है और रिमार्क करना है आपको पॉजिटिव निगेटिव है और 0 से। इफ ग्राफ नीचे दिया है, ओके, द वेलोसिटी टाइम यहाँ पे ग्राफ दिया है, ओके। तो एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है बोलो, यहां पर कितना एक्सेलरेशन 0, 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है 0। पहले का आंसर कितना r, फर्स्ट का r कहां दिया है, फर्स्ट का r, तो बस हो गया, नहीं फिर भी ढूंढना है आपको, वैसे नहीं करना है ना, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेलोसिटी एट 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 1 मिनट, तो देखो, तो क्या आ जाए, एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है तुम्हारा, यहाँ से वेलोसिटी थी आपकी डिक्रीज होती गई है ना, तो रिटार्डेशन आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा उसका निगेटिव। तो अपना आंसर देखो, इसलिए बोलता हमें सभी चेक करना है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, बराबर है। तो एक्सेलरेशन क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका 4, बराबर है, 4 - 0 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ रहा है, सॉरी 0 - 4 ना, फाइनल कौन सा है आपका 0, फाइनल क्या है 0 - 4 डिवाइडिंग बाय 4, कितना है एक्सेलरेशन -1। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका निगेटिव, इसका मतलब पहले का आंसर क्या होना चाहिए Q, फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए Q। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर दोनों में हो सकता है आपका, फर्स्ट का Q है, फर्स्ट का Q है। सेकंड क्या पूछा है, वेलोसिटी एट 4 सेकंड, वेलोसिटी 4 पे 0 है, तो सेकंड का क्या है, थर्ड का, अरे शायद ये 2 होगा मेरे ख्याल से, थर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा 2 होगा, है ना, 1 2 3। वेलोसिटी एट 4 सेकंड, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 0, सेकंड के लिए क्या आना चाहिए r, सेकंड के लिए क्या आना चाहिए r, तो सेकंड के लिए r है। तो अभी आपको थोड़ा सा कंफर्म हो गया। थर्ड भी देखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव है ना, ऊपर है यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा सी। समझ में आ गया, हाँ, गड़बड़ में अपन पहले गलत कर थे ना, है ना, गुड। देखिए समझ में आया ना आपको, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, फाइंड द फिगर्स 1 to 5, ओके, shows the graphical representation of motions in the 1 dimensions. Here here yes VA, yes and a displacement, V and a velocity, A is the acceleration, represent the displacement, velocity and accelerations and the time respectively. Which of the above graph represents uniform motion? तो आप ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है बताना है, सेकंड वाला है क्या, फोर्थ वाला है, सेकंड वाला है, सेकंड वाला है ना। सेकंड वाले में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सेम है,
मोशन में आने का मतलब इसका अपन कंसिडर करते हैं वेलोसिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला आपका ग्राफ करेक्ट है। ये क्या एक्सेलरेशन है बेटा, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी है, कौन सा फिफ्थ वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है ना। यहाँ पर सॉरी वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, यानी क्या है तुम्हारा इसका मोशन यूनिफॉर्म है। क्या है मोशन का मतलब क्या, डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, पहले देखो यहाँ पे टाइम 10 था, यहाँ पे टाइम बढ़ते गया तो वेलोसिटी 10 हो गई, 40 हो गया, 40 स्पीड बढ़ रही है आपकी, एक्सेलरेट हो रहा है। ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बराबर है। एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी पॉजिटिव, ये और ये ग्राफ तुम्हारा सेम ही है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ आएगा आपका, सेकंड ओनली, समझे। यूनिफॉर्म के लिए क्या यहाँ पे क्या जाए, देखो एस और टी, तो ये क्या है तुम्हारा मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन यानी रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं अपन, क्या करता है ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है आपकी, बराबर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये भी नहीं, ये और ग्राफ तो तुम्हारा ये तो ग्राफ आएगी नहीं, कि यूनिफॉर्म में तो कर्व तो आप देखना ही नहीं है ना। तो आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन 2 करेक्ट है, वेरी गुड। तो उसके बाद में तो नेक्स्ट देखो, आज क्या पढ़े अपन ने, वी ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ग्राफ ऑलवेज यूज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यूनिफॉर्म में कैसा आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म में नॉन लीनियर कर्व आता है, नॉन लीनियर में कैसा ग्राफ आता है, कर्व आता है। इज इट क्लियर। और द एरिया रिप्रेजेंट्स द ग्राफ, वेलोसिटी डायग्राम टाइम ग्राफ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज द वेलोसिटी, करेक्ट है। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज द वेलोसिटी। ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज द जर्क, है ना। ये देख लिया अपन ने, बराबर। तो और यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, अपन यहीं पे देखेंगे क्या करना है। देखो, अ गर्ल्स वॉक अलोंग द स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप द लेटर्स इन द लेटर बॉक्स एंड कम बैक्स हर इनिशियल पोजिशंस। एक लड़की क्या गई लेटर डाली और फिर से वापस आ गई। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर्स द प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है उसका, तो क्या करना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है फॉर द फिगर। तो क्या करेंगे, चलो ये क्या करेंगे, एक्सिस ये टी है और ये क्या है, वी है। थोड़ा सा नीचे भी ले लेंगे, लगता है तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो क्या करिए लड़की, देखो गर्ल्स वॉक अलोंग द स्ट्रेट पाथ, सीधे रोड से जा रही है। ड्रॉप अ लेटर इन द लेटर बॉक्स, है ना, यहाँ से गई तो यहाँ पे उसकी क्या है, देखो अभी उसकी वेलोसिटी क्या थी, पहले 0 थी, 100/50 वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी, 2, पॉजिटिव 2 है, वेलोसिटी की बढ़ती गई, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 ऐसा हो गई, कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है ना। फिर बाद में क्या करी लड़की, फिर वापस आई, डायरेक्शन क्या हो गया उसका, चेंज, घर पे आ रही है ना। तो उसका क्या है, 100/50/2 कितना आ गया, फिर से 2, तो ये ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा, -2। ये टाइम का है, यहां से जाएगा, बराबर है। ये टाइम तुम्हारा यहां से लेकर 50 टाइम था, यहां पे 50 था, 50 सेकंड के बाद में क्या हो गया, 100 सेकंड तक उसकी स्पीड क्या हो गई, माइनस। पहली स्पीड क्या थी, प्लस। समझ, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। स्पीड तो कांस्टेंट, स्पीड इज ओनली द मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो आते समय की वेलोसिटी, जाते समय की वेलोसिटी क्या थी उसकी, पॉजिटिव, और आते समय की वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, निगेटिव। वी इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप क्या आ गया, निगेटिव, और इसका स्लोप क्या आ गया आपका, और इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया। तो इसके लिए पहले का +2 और 50 सेकंड के बाद में, सेकंड है ना टाइम जो भी है, सेकंड 50 सेकंड के बाद में यहाँ से लाइन निकलेगी आपकी, समझे क्या। देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखो, in the speed time graph for moving objects shown here and the parts which indicates uniform deacceleration. क्या बताना है आपको, deaccelerations of the object. Deacceleration का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी क्या ग्राफ तुम्हारा क्या नीचे आने वाला होना है, अपने ऊपर बढ़ने वाला होना है क्या, नहीं। यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, 0 है, 0 है।
यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे नीचे उतर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, नेगेटिव। तो कौन सा पार्ट हो गया तुम्हारा, आर से लेके, यस, द पार्ट आर एस, है ना। तो निकालना है तो निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल, देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम स्पीड, फाइनल ये है, या फाइनल लेस कम है, इनिशियल क्या है ज़्यादा है, फाइनल माइनस ज़्यादा इनिशियल, वो तो कम से ज़्यादा का तो क्या आएगा आंसर आपका, नेगेटिव, नेगेटिव बाई एनी टर्म नेगेटिव, तो इसके तुम्हारा आर एस इज अ नेगेटिव पार्ट। समझ में आ गया है। द नेक्स्ट वन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, अरे 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 पढ़ो रे, जरा दिमाग लगाओ रे, एक्सेलरेशन, है ना। स्लोप ऑफ अभी सपोज करेक्ट है आपका, है ना, क्या आएगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन। अभी सपोज यही क्वेश्चन में मैं बता था, यहाँ पे एरिया लिखा था, तो हाँ वेरी गुड, एरिया लिखा था तो क्या आया था तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। पर यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसका क्या है, एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द स्लोप ऑफ, अरे वही क्वेश्चन पूछा क्या चलो, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या आएगा, सेम, गलत दबाया क्या मैंने, अच्छा सॉरी, अच्छा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the motion of a cyclist, find its acceleration, आपको acceleration निकालना है, velocity time graph दिया है, its velocity भी निकालना है, and the distance covers by the cyclist in 15 seconds। तो 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर निकालना है। पहले क्या पूछा उसने अपने को, acceleration, acceleration क्या निकाला गया अपन, स्लोप ऑफ द ग्राफ, वेरी गुड। तो पहला का आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 0 निकालना है, निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, 20 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम 15, कितना आ गया, 0/15, 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, 0। सेकंड क्या निकालना, इट्स वेलोसिटी, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या आ गया, ग्राफ पे 20, तो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 20 मीटर पर। आप क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कितने टाइम में निकालना है, 15 सेकंड में निकालना है, बराबर है। 15 कहाँ है आपका, यहां पर है, यहां से मार दो परपेंडिकुलर, तो क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया आएगा, बराबर। एरिया कितना होगा तुम्हारा, 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 360 कैसे आता है, 15 दूनी 30, 300, तो कितना है तुम्हारा, 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 300, क्या आएगा यूनिट इसका, मीटर। समझे, हाँ, गुड। इज एनी डिफिकल्टी दिस टुडेज टॉपिक, इफ यू हैव कैन आस्क विदाउट हेजिटेशंस, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हाँ, टॉपिक बहुत सिंपल था आज का, हाँ, एक बार रिवाइज कर लो। इफ एनी डाउट कैन आस्क मी एनी टाइम विदाउट हेजिटेशंस। ओके, थैंक यू।